دیکھا کہ آج کل جو ہے یوتھ میں کافی انتھوزیازم ہے ووٹنگ کے حوالے سے. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یہ ڈیموکریسی کی جیت ہے اور جمہوریت پہ لوگوں کا اعتماد ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل جمہوریت کی جیت ہے اور اب یہ جمہوریت گراؤنڈ لیول تک جا رہی ہے. ایک جمہوری فضا قائم ہو رہی ہے. میں کور پن ووٹ کاسٹ. میں چن پن کینڈیڈیٹ لوکل مدعو خاطر چن میں کینڈیڈیٹ. ام کن ووٹ تراؤن کہ سٲنِس علاقس بن ترقی. ووٹ جو ابھی ہم ڈال رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ اور اپنا نمائندہ چننے کے لیے ہمیں یہاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اور باقی جو بھی یہاں پہ یوتھ بے روزگار یوتھ ہے تو ان کے لیے کچھ روزگار فراہم ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے ووٹ کاسٹ کیا. ہے کہ ہمارے ہاں حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہم یہاں کی سیاست کو چاہتے ہیں آگے بڑھانا اور ایک اچھے نمائندے کو لانا چاہتے ہیں اسمبلی میں جو یہاں کے لوگوں کی بات کرے. ان سے پوچھنا چاہیں گے آپ کس مقصد سے یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں؟ جی مقصد یہ ہمارا ہے کہ ڈیموکریسی کا پارٹ ہے. ووٹ ڈالنا ضروری ہے. اپنا نمائندہ چننا ہے. مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنا ضروری ہے. ناظرین وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. ہم اسمبلی انتخابات کے نتائج کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایڈوکیٹ شیخ سلمان صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ گورنر کی جانب سے 5 کینڈیڈیٹ کو جن کو ان میں شامل کیا گیا ہے 5 نئے کینڈیڈیٹس کو اسمبلی میں, تو کیا یہ کرنا لازم تھا اور کیا وہ کر سکتے ہیں؟ اور اس پہ اپنے ایز بی جے پی کی جانب اسپوکس مین ہے تو ذرا بتائیے گا. دیکھیے ریپرزنٹیشن کو ریزرو کرنا اور ریپرزنٹیشن کو آگے لانا بہت امپورٹنٹ ہے. ویمن ریپرزنٹیشن جو ہمارے 43% جو مہیلائیں ہیں جموں کشمیر کی 43% ہے, تو ان کی بھی ایک وائس کو اپینیٹ کرنا, ان کی وائس کو چینلائز کرنا اور ان کی وائس کو ایک پلیٹ فارم دینا بہت ضروری تھا. ہمارے یہاں کا ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک ایسی کمیونٹی ہے کشمیری پنڈتس کی جنہوں نے ٹرموائل دیکھا ہے, جنہوں نے ہارڈ شپ دیکھی ہے, جنہوں نے ایک بہت رتھلیس پیریڈ دیکھا ہے, بہت ہارش وقت ان پہ گزرا ہے. ان کی بھی ریپرزنٹیشن کو, وہ کافی ڈس اورینٹڈ ٹائم سے گزرے ہیں, تو ان کی بھی ریپرزنٹیشن کو اپینیٹ کرنا اور ایک پلیٹ فارم دینا بہت ضروری تھا. سملرلی اس میں جو ہمارے ریفیوجی ہے وہ بھی ایک ہے, 2 کشمیری پنڈت ہے, 2 عورتیں ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشن یہ مانتی ہے کہ ان کی وائسز کو, ان کی اپینینز کو ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے. No, they are all from BJP. As per your leader, Mr. Sofi, he declared openly, yes, یہ ہماری پارٹی سے ہے. You have your governor, your LG, he has not taken anybody else, he has taken his own party people. He identified himself that I belong from BJP and these MLAs are from BJP only. They did not give any right decision.
he gave नहीं जी मैं बीजेपी के ही कैंडिडेट्स दूंगा because मैं बीजेपी से belong करता हूं. Did Because any they are any all from formal BJP. did any formal or official statement came from Of the course, LG's end of course, I that think they I are think gonna you have bring the not listened, BJP? Mr. Sofi, he said He's- हाँ, अशोक साहब वो हमारे, फलानी फरीदा जी वो महिला मोर्चा, another lady she is from us, Rajni ji वो हमारी. So what is left there? So it was all planned that the BJP is going to have, they will give their own candidates without electing, without winning. No, You that, accept that this. you have to You understand accept, that. no, and not understand. when The story is clear to LG Raj everyone. Bhavan, LG Story Raj is Bhavan, clear. LG Raj Bhavan is not a political party. They Yeah, are an of course, once he again, proved it. They are He a proved political. it that they I are belong they, from BJP. I can select anybody LG from BJP. LG and Why Raj, not from LG anybody else? Let me just Why speak. not from a ST? Why not from a lawyers? Why not from a OBC? Why not? This is the condition where you stand that no, these all are from our party and we are going to put you in front of you, and still unfortunately you did not come up with that. Okay, Professor right. Saab, Let me Professor just Saab, come up आप with this. किस Let me निगाह just से come up with देखते this. हैं? Let me just come up with this. जी. Raj Bhavan is an institution. It is not the party. It is not a political party. It is a state institution. And state institution does a job very wonderfully. You cannot. Do you cannot. think that he gives his they are. candidates as a head of this kind of state? They are as a head of representing. this- They are You representing. think? No. Why cannot it be from the BJP? Why cannot it Why be not from any from other the? Why party? not from the ST? Why not from the Why BJP? not from the lawyers? Why not from the women's section Why of the not BJP? from the Srinagar, Kashmir? Why not from the BJP? Why not from the city where they have suffered? The people have suffered day and night. Still they are suffering. Have you gone inside the downtown where they are suffering electric problem, road problem, water problem every time? Do you think that Kashmiri Pandits, Ashok Kaul has not suffered? Do you think that Kashmiri Pandits? आप दोनों मेहमान अपनी अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरे को बोलने का मौका This दीजिए. community. Why from BJP? Fine. If from BJP, why not from the Kashmir city? Why not from village of Once Kashmir? again, is Kashmiri Pandit Ashok Kaul not from the city? He is from a city. Are you He's sure? from the city. Yeah, he's from Babar Shah. What? Are you sure he's not? I don't know. Just raising Just check raising your what voice. he has said Come on. last time. Just I think raising you your are still voice saying- would he not said- articulate, he said- would not he give said the right himself- representation. He said himself, my ancestors are from this village. Which I village? think you forget. Which When village? he had been to Pulwama, he said, मेरे यहाँ से मेरी जद है. So where Ashok Kaul is from the Okay, Barbar fine. Shah. You can do your That is Ashok homework Bhatt. is not. That is Ashok Bhatt. Ashok Bhatt is from the Habba Kadal, That's what I'm saying. He's and not Ashok Bhatt. Kaul is from the When- Barbar Shah. Okay, fine. See the Ashok Bhatt. If you are so strong, see your condition in the Abakad. See your. We have condition raised in the vote. Gurez. We have gained No, votes. No. We have gained votes, We have and there's lost the votes. we have gained votes from the जैसे last आप लोगों ने assembly. बोला 400 के पार तो 35 के पार वो पार कहीं नहीं वो डूब गया. देखिए 400 के वो पार है ही 35 नहीं के कहीं. पार देखिए मॉरल एक आप That करना power होता is है, not but there. you are not You talking. cannot gain. You I cannot can- gain the I can- people's trust. This is the people who have decided. Maybe they may have voted somebody else, but this time they know that अगर हमारे पास कोई रास्ता है NC है. हमारे पास कोई. They did not vote PDP because once they were also your friends. Can we pitch down? Can we pitch down? Because they showed. I will ask the anchor, and can we just lower down the conversation and talk in a civilized manner and let the other person talk, because it is a conversation. आप तकरीर नहीं कर रहे हैं, आप तकरीर करने नहीं आए सुजाता जी, आप तकरीर मत करिए, आप पैनल करिए. But anyways, अगर जो वो लोग हैं, are they not from the Jammu Kashmir? Are they not the residents of Jammu Kashmir? Are they not the citizens of Jammu Kashmir? They are not. Kashmiri Pandits are not from Jammu Kashmir. I said Pandits are from Kashmiri STs are not from Kashmir. Kashmir. are not Kashmiri from Jammu Pandit, okay, no, Kashmiri Pandits are not from the Jammu Kashmir. Kashmiri Pandits. Kashmiri Pandits are not from Jammu Kashmir. Please tell me, aren't the Kashmiri Pandits? All from BJP, and why they put the petition in the Madras court? Because before this declaration of elections, they cannot select. He cannot select this. Why in Pondicherry he put the case? There's a reorganization. अब इनको याद आया जब Reorganization Act 2023 आया. रातों रात डिक्लेयर करते मैं जी खुद से अपने सिलेक्ट कर सकता. जब Reorganization Act Amendment of जब Reorganization Act 2023 where you have to do the justice. Reorganization 2023 that giving representation. अरे यार, I cannot. These 5 people belong to BJP. इतना चलाएंगे आप सुजाता जी, कोई सुन नहीं पाएगा, मेरे कानों में दर्द हो गया यार, इनको रोको कोई. सलमान साहब, सुजाता जी का सवाल है कि जो कैंडिडेट, सुजाता जी आप बोले तो दे, सिविलाइज तरीके से कन्वर्सेशन को करेंगे हम. एक सेकंड. सलमान साहब, सुजाता जी का सवाल है कि ये जो कैंडिडेट 5 आए हैं, ये कश्मीर सूबे से क्यों नहीं आए? आप उनका आराम से जवाब दीजिए. ये कश्मीर सूबे से ही आए. ये अगर सुजाता जी को प्लीज आप रोकिए, प्लीज इनको कोई रोके और मैं बात वो रुकी हुई है, आप बताइए. बात करें, बात करें.
ٹھیک ہے، تو میرا یہ کہنا ہے جو کشمیری پنڈت آئے ہیں یا جو عورتیں آئی ہیں وہ بھی کشمیر سے ہے، وہ بھی کشمیر سے ہی ہے، فریدہ جی سوپور سے ہے، اشوک کول بربر شاہ سے. اگر آپ یہ 2 نام انہیں بتائے اور بتائیے 3 نام کون ہے، بتائیے میں آپ کو ان کی جیوگرافی بتاؤں گا. اگر وہ ہے بھی ابھی تک وہ نامنیٹ نہیں ہوئے، ابھی تک وہ نامنیٹ نہیں ہوئے، ابھی تک وہ نامنیٹ نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی نامنیشن نہیں ہوئی. صوفی صاحب کیا بولتے ہیں وہ میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے سلیمان جی، I don't know. To ask him. I'm not Sofi Saab. My name is Advocate Sheikh Salman. You tell me. ابھی گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے. سلمان You صاحب، ask him Sofi Saab. You get Sofi Saab here and you tell him. سلمان صاحب آپ نے اپنی بات رکھی ہے. Party's guideline. سلمان صاحب آپ نے اپنی بات رکھی ہے. آپ پروفیسر صاحب، آپ وانی صاحب، یہ جو ان کی جو تکرار ہے آپ کی نگاہ سے سننا میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے کہ کیا جو کہہ رہے ہیں کہ 5 کینڈیڈیٹ کشمیر صوبے سے آئے ہیں یا ہونی چاہیے نہیں، آپ بتائیے گا. نہیں دیکھیے، یہ میں کہوں گا کہ یہ ماڈلز آف ریپریزنٹیشن ہے. جی ایک ماڈل آف ریپریزنٹیشن جو ہے وہ یہ نامنیشن کا ہے. ایک ماڈل آف ریپریزنٹیشن ایک وقت اگر آپ کشمیر کی تھوڑا مطلب زیادہ بھی دور نہیں جانا ہے، جی پیار لال ہنڈو مرحوم وہ پہلگام سے الیکٹ ہوئے اور پریڈومنیٹلی ایک مسلم کانسٹیچوئنسی پہلگام تھی اس وقت. وہ نیشنل کانفرنس کے ریپریزنٹیٹیو تھے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی کیبنٹ میں مجھے لگتا تھا ہی واز ون آف دا پاورفل منسٹرز. تو ایک وقت موہن کشن تکو منسٹر تھے. میری اپنی کانسٹیچوئنسی جو ہے دیوسر، وہاں سے لیٹ منوہر ناتھ کول صادق میر قاسم کے کیبنٹ میں ریونیو منسٹر تھا، ڈائریکٹلی الیکٹڈ. لیٹ ڈی پی در بھی وہ وہاں سے الیکٹ ہوئے دیوسر سے ایک بار. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماڈل ہے آپ کو کہ آپ جیسے آغا روح اللہ پریڈومنیٹلی ایک شیعہ سنی کانسٹیچوئنسی سے الیکٹ ہو گئے فار لوک سبھا. اچھا، عمر عبداللہ ہی گاٹ الیکٹڈ فرام اے کانسٹیچوئنسی فرام بڑگام وائر یو ہیو پریڈومنیٹلی شیعہ ووٹس. اگر ہم اس پرزم سے دیکھیں گے اٹ از پاسبل کہ کشمیری پنڈت جو ہے وہ ہی ول گیٹ الیکٹڈ فرام اے پریڈومنیٹلی کانسٹیچوئنسی جہاں مسلم ووٹ بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے. یہ ایک ماڈل ہے. لیکن اب جو انہوں نے ماڈل جو انہوں نے لیا وہ ماڈل یہ ہے کہ ہم نامنیٹ کریں گے ان کو. تو دیکھنا پڑے گا کہ ود ان دا کمیونٹیز جو نامنیٹ جن کے لوگ نامنیٹ ہوئے کہ ان کمیونٹیز میں بھی ڈیفرنس آف اوپینین ہوگا. وہاں ڈیفرنٹ گروپس ہیں. آپ دیکھیں کتنے کشمیری پنڈت جو ہے جو پی ڈی پی میں ہے جو کافی ایکٹیو ہے، کتنے کشمیری پنڈت ہیں جو نیشنل کانفرنس پہ ہے، کتنے کشمیری پنڈت ہیں جو باقی آرگنائزیشنز میں بھی ہے. کیا یہ جو ہے نامنیشن یہ رولنگ پارٹی جو ہوگی اس وقت کی ان کی کٹی میں جائے گا یا ان کا ایک قسم کا ایک ویٹو پاور ان کے پاس رہے گا، یا اس کو ڈیموکریٹائز کرنا ہے یا اس کو اس طریقے سے لینا ہے کہ ریئلی جو مارجنل کمیونٹی ہے ان کو ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے. اسٹیٹ کے لیے کام کرتی ہے. اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل اینٹی، اٹ از این ایڈمنسٹریٹو اینٹی. ایڈمنسٹریٹو اینٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کے نیریٹو کو لے کے، اسٹیٹ کے انپٹ کو لے کے، اسٹیٹ کی آبزرویشنس کو لے کر نامنیشن کر سکتی ہے. ہمارے ایم ایل سیز بھی پچھلی گورنمنٹ میں نامنیٹ ہوئے تھے. وہ کس بیس پہ نامنیٹ ہوئے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہم کو بھی پتا ہے. سو لیٹس ناٹ گو دیر. وی جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ جو بھی یہ باشندے ہیں یہ جموں کشمیر کے ہیں. The basic criteria should be کہ they are from the Jammu and Kashmir and their origin is from here. They are the citizen. جیسے آپ ایک rightful citizen ہے وہ بھی ایک rightful citizen ہے. وہ ایک کیٹیگری میں فٹ کرتے ہیں. وہ کشمیری وہ ایک ارے Is it the nomination has taken place? Is it somebody from the paper? Speculations or anything, cannot assume anything. It's just like we are trying to figure out that anybody who is being nominated fits into the category that they should be a woman, 2 auratein, 2 Kashmiri Pandit or 1 refugee. So that is the category and they can be anyone. They can be from the BJP or any other institution. So administrative institution. ابھی تک وہ کوئی آرڈر نہیں آیا ہے, کوئی نامنیشن آئی نہیں ہے آفیشیل. آپ اسی رومر کو ہوا بنا کے مت چلائیے. نہیں سلمان صاحب ایک بات میں جہاں where I would like to seek your opinion. Nomination ایک بات ہے, دوسرا ہے کہ they are nominated but with voting rights. Without electing. So voting rights, I mean an MLA has a voting right, so he can do the voting rights. اگر آپ اس کو تھوڑا اس لارجر فریم ورک میں دیکھیں گے کہ جو الیکٹ لوگ ہوئے, چاہے وہ بی جے پی کے الیکٹ ہوئے جموں سے یا کسی بھی پارٹی کے جو الیکٹ ہوئے, الیکٹ ہونا کیا ہوتا ہے اور نامنیٹ کرنا کیا ہوتا ہے, اور پھر نامنیٹڈ ممبرس کو بھی وہی ووٹنگ رائٹس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی حکومت کو بنانے میں اور بگاڑنے میں
ये लोग दे कैन वर्क एक वाइटल रोल कर सकते हैं, विच लाइक एन एवरी एमएलए है जो इलेक्टेड है, उनके हम पावर्स को कट डाउन नहीं कर सकते। जो एमएलएस के वोटिंग रेट है, जब उनको नॉमिनेट कर रहे हैं तो फुल फ्लेज्ड तरीके से करेंगे ना, बिकॉज दे हैव द सेम प्रेरोगेटिव, दे हैव द सेम प्लेटफॉर्म। सो इट इज नॉट कि दे विल कट डाउन देयर साइज और दे विल क्रप देयर साइज, ऐसा नहीं होता। If you have nominated an MLA, you cannot make any special provisions for them कि they cannot voting right and all that. Grow the BJP so that you will give your own candidate still. If we see, we have tried to grow the Kashmir state of Kashmir. We have tried to grow the. We have tried to grow the state of Jammu and Kashmir by giving it platform where your NC people, where your DPAP, where PDP and everybody can go peacefully without any hindrances, without any obstacle, and make their government. And we have given full liberty to you guys. Let's see, you have said the statehood. Let's see how much time you take to give the statehood to the people of Jammu. But tell me one thing. We are all discussing all this. जो मैनिफेस्टो में प्राइम चीजें और बार बार कही गई थी बाय एनसी के लीडर से, हमारे प्रोफेसर साहब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारी सुदासा जी भी यहाँ पे, दे आर नॉट पुटिंग ए क्वेश्चन टू द एनसी पीपल कि ये एनसी वाले लोग जो है ये इनने अपने मैनिफेस्टो में दो चीजें डाली है कि हम 370 को वापस लाएंगे और हम स्टेटहुड देंगे। क्या इनके पास वो पावर्स है, क्या इनके पास वो प्रेरोगेटिव है, और उनका रोड मैप क्या है, वो किस रोड मैप को लेकर वापस आएंगे? इनके दो पार्लियामेंटेरियंस हैं। अमित शाह साहब has read their manifesto where he has said their manifesto is very clear and statehood will be given. Statehood तो हमारा है ना, state is not there. अरे statehood is our prerogative. Statehood तो बीजेपी, statehood तो बीजेपी का prerogative है ना, prerogative बीजेपी का है ना. You can take statehood is a prerogative of a BJP. You cannot with two parliamentary. Statehood हमारा prerogative है ना कि हमारा BJP का state जो parliament का state. BJP is a prerogative. BJP is a prerogative of parliamentary, not the assembly. तो कैसे लाएंगे उस पे कोई बात नहीं कर रहा। आप शायद पता नहीं एनसी के लिए बायस्ड है, आपकी पॉलिटिकल आई डोंट नो what you are trying to do. I think what I am assuming, who is suffering, how is people suffering, we giving them better place to live, we give them a security scenario where their lives are safe, there is no stone pelting, there is no jobs were put by the NC people, there were 33 jobs by the 33,000 jobs daily basis of the NC people, what they did with them. See the job rate very tight. Yeah, I'm putting the 33,000 मैं अभी का सवाल आगे ले जाऊंगा, आप एक मिनट मेहरबानी करके Still you did not make them permanent. आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा दोनों मेहमान। देखिए शौकत साहब सलमान साहब कह रहे थे, सलमान साहब अभी कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि स्टेटहुड जो है 370 और स्टेटहुड को वापस लाया जाएगा। तो क्या टेक्निकली जो है असेंबली यहाँ की अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाती है कांग्रेस, तो टेक्निकली क्या वो ला पाएंगे इन चीजों को या मुमकिन है किसी? ये प्रोफेसर साहब इसको जब सवाल का जवाब देंगे तो मैं उसको बड़ा जी प्रोफेसर साहब नहीं मैं इसमें एक दो स्ट्रेट कट बताइए प्रोफेसर साहब। कैन 370 भी रिवाइवल बाय सलमान साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये बातें हैं, बल्कि नॉट ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस, अदर पार्टीज में भी उन्होंने भी स्टेटहुड का मसला जो है, और बीजेपी चाहे कहे या ना कहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स, और पार्लियामेंट में ये बात कहना, प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के फ्लोर पर, लोकसभा के फ्लोर पर ये कहना है कि स्टेटहुड विल बी गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इसको आप ऑर्डिनरी मतलब इस सेंस में आप बार बार इसको आप मतलब कोई इस तरह से कोई ये नहीं कि ही इज नॉट गिविंग दिस स्टेटमेंट एज ए पार्टी लीडर, एज प्राइम मिनिस्टर। एक बात, दूसरा ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई पार्टी ये नहीं उसमें मेथोडोलॉजी दिखाते हैं कि हम कैसे, ये नंबर्स का मसला नहीं है जी। ये एक्चुअली मसला ये है कि इंडियन स्टेट को समहाउ ये कल को एनसी बोलेगी कि मैं जी 80 लाख लोगों को अभी रोजगार दूंगा और एनसी 80 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स दूंगा, क्या वो पॉसिबल है? वो तो लोगों को गुमराह करने वाली बात हुई ना। लेकिन देखिए ये हमारी सुजाता जी यहाँ पे, इनकी तो कोई स्टैंड ही नहीं बनती कि ये बात करें, इनकी एक भी सीट नहीं है, इन्होंने एक भी सीट नहीं जीती है, इनके कहीं पॉलिटिकल डायनामिक्स में कोई है नहीं। हमारे तो 29 सीट्स है, हमारी 29 सीट्स है, हमारी 29 सीट्स है, आपके पास तो एक भी सीट नहीं है। अरे आपके पास सुजाता जी एक सीट नहीं है। अब तो हम तो जम्मू कश्मीर, Why Kashmir? We Jammu Kashmir. We always say as Jammu Kashmir. Jammu Kashmir हमारी स्टेट है, we not Kashmir, और हम 29 सीट्स है,
stand. And out of 12 candidates, not even one. आपकी पार्टी की स्टैंडिंग कहाँ है? और देखिए आपकी पार्टी की स्टैंडिंग नहीं है. You don't stand anywhere. You don't stand anywhere. The number says it. वो टीवी पे नंबर देखिए. There's 29. There are 29 elected representatives. 29 elected representatives from BJP, and you have no one. 9 and others, isn't it? No one. That's why you put the independent candidates so that they were unfortunate they did not come. No one from your end. So you have no standing to say. I don't know on which capacity you're saying, because आपकी political dimensions में आपकी कोई जगह ही नहीं है. Don't worry. प्रोफेसर साहब, हाँ जी वो मैं इनको ये जो अपने प्रोफेसर साहब ये देखना है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये ऑलरेडी क्लियर किया है कि जो नई असेंबली बनेगी तो हम उसमें एक रेजोल्यूशन लाएंगे. दैट रेजोल्यूशन ऑब्वियसली डज नॉट हैव ए लीगल वैल्यू, बट इट हैज ए पॉलिटिकल वैल्यू. मुझे पता नहीं कि वेदर दे विल ब्रिंग दैट रेजोल्यूशन, लेकिन अगर उन्होंने वो रेजोल्यूशन लाया फॉर स्टेटहुड तो नेचुरली एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर का जिसमें 90 मेंबर्स है, और उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अपोज इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एंड इट विल बी इक्वली वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर पार्टीज ऑल्सो टू अपोज इट. बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या ऐसा रेजोल्यूशन वो ला सकते हैं लीगली अपार्ट कि उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है या लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इट विल हैव. बट इन एनी केस ये बताइए प्राइम मिनिस्टर को लेके और होम मिनिस्टर को लेके जब हमने ही वादा किया है, जस्ट 1 मिनट, जब हमने ही वादा किया है स्टेटहुड का, तो उनको मैनिफेस्टो में डालने का क्या जरूरत है? जब स्टेटहुड बीजेपी का ही प्रायोरिटी था, जब स्टेटहुड बीजेपी की प्रायोरिटी थी. सुजाता जी उनको अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए. उनको हायर किया किसी मुझे बात नहीं करने दीजिए. उनको अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए. Let me talk. I'm talking the public. No, you have been hired not to let me talk. I know what the people are. Yeah, okay. I know what the people of Jammu Kashmir want. No, what? They are suffering. They don't want you. They don't want DPAP at least. We know that they don't want DPAP at least. That's why you're talking. Anyways, I'm just talking about something. Let me just talk about it. First of all, no, one second. Statehood हमने ही बात की है. होम मिनिस्टर ने ऑन पार्लियामेंट में बोला है कि स्टेटहुड इलेक्शन के बाद दिया जाएगा. तो इस पे एनसी क्या खेल रही है? जब बीजेपी का ही प्रॉमिस है कि स्टेटहुड मिलेगा, तो एनसी को क्या मैनिफेस्टो में डालना है? उनको क्या दिखाना है कि हम स्टेटहुड नहीं दे रहे? हमारे होम मिनिस्टर ने ऑन ग्राउंड बोला है स्टेटहुड आ जाएगा. तो व्हाट इज हुकूमत एनसी की हो या किसी की हो, उसके बाद बावजूद और एनसी का क्या स्टैंड रहना चाहिए? मुझे क्योंकि इनका बायस बहुत एनसी की तरफ लग रहा है. जो हमारे प्रोफेसर साहब है, इनको पूछिए एनसी का एम्प्लॉयमेंट पे क्या स्टैंड रहेगा. और सुजाता जी से भी पूछे जो कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रेट्स है 33,000 डेली वेजेस है, क्या स्टैंड रहेगा? अगर नहीं करेंगे तो दे आर आउट. क्या उन्हें कोई रोड मैप दिया है? कौन से इंस्टीट्यूशंस और मैकेनिज्म्स है जो उनके लिए पैसा जनरेट करेंगे? प्लीज बताइए. सलमान साहब, ये जो अगर हम इस स्टेटहुड को या बाकी रिलेटेड इश्यूज जो भी है, अगर हम इनको ये कि कोई इंडिविजुअल दे सकता है, कोई पार्टी दे सकती है, तो हम इग्नोर करते हैं एक चीज को कि हाउ पार्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्स. आप तो इंडियन स्टेट को जब यहां से कोई डिमांड जाती है, कोई मैनिफेस्टो है, इट डज नॉट गो टू बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट एनी पार्टी विच इज आस्किंग फॉर स्टेटहुड, they are not making this request to the BJP. The request or submission or whatever it is going to the Indian state, and they are only representatives of the Indian state. इसमें हमें बड़ा क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो ये ऐसा होता है कि जैसे एज इफ इट इज ए पर्सनल फेवर. मैंने 370 निकाला, 370 आपने हटाया, इट वाज इंडियन स्टेट्स डिसीजन. उन्होंने कैसे किया, क्या किया, इसमें क्वेश्चन रेज अप होंगे, हमेशा होंगे, वो तो अलग बात है. एक बात. दूसरा ये है कि स्टेटहुड के मामले में ऑलरेडी जो अलायंस पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हैज ऑलरेडी स्टेटेड इट कि मैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो मामलात है उसके लिए मैं आई एम एन एडवोकेट फॉर दैट. आप छोड़ दीजिए वो. नहीं, ये बताइए ना, जब एनसी, आप इस पे भी तो एक सवाल करती है ना कि जब एनसी का स्टांस है कि हम 370 वापस लाएंगे और कांग्रेस का जो स्टांस है कि हम जी
370 के अगेंस्ट है, एब्रोगेशन के साथ है। तो मुझे बताइए अलायंस किस पे है? जब आइडियोलॉजी नहीं मिल रही है, क्या ये सत्ता की अलायंस है? क्या ये खाली पावर पॉलिटिक्स की अलायंस है? जब आप लोग एक आइडियोलॉजी पे नहीं है, आप लोगों का स्टांस अलग है, आप लोगों की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग है, इसको भी तो आप पॉइंट पे लाइए ना। तो आपकी किस लिए? खाली पावर में आने के लिए, कुर्सियों के लिए पॉलिटिक्स है? आपकी कोई आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, आपके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, यू डोंट स्टैंड फॉर योर प्रिंसिपल्स, यू डोंट स्टैंड फॉर योर डिसीजंस। इज इट ओनली फॉर द पावर पॉलिटिक्स? यू गाइज हैव अलाइंड टुगेदर, दीज टू पार्टीज हैव अलाइंड टुगेदर। इनका स्टांस इंडिया में क्या है, पूरे भारत में क्या है 370 को लेकर? यहां पे आके अगर एनसी को सपोर्ट करें, एनसी तो कह रही है सबसे प्रायोरिटी पे हम 370 को लाएंगे, उसको भी तो सवाल में लाइए, उससे भी तो बात करिए, उसको भी तो चर्चा लाइए। देखिए आप हमेशा जो मीडिया को, टूल को और नैरेटिव को हमेशा टर्न अराउंड करके बीजेपी को नहीं दे सकते, डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। जो बीजेपी ने काम की है अभी यहां तक आके, उसमें 29 सीट्स है। पता नहीं सुजाता जी किस कैपेसिटी में बोल रही है, इनकी तो एक भी सीट नहीं दिख रही है। मैं फिर भी उस कैपेसिटी में बोल रहा हूं क्योंकि हमारे 29 और आपके आजाद साहब यहां 30 साल से आई थिंक ऑपरेट कर रहे थे और फिर भी नहीं कुछ कर पाए, बट दैट इज सैड। अभी एक सीट नहीं ऑपरेट कर पाए, हम 12 साल में 29 सीट पे लाए थे। बट देन you should see a CM cannot do anything right now in the election. The people have shown the dissent. People have shown the dissent. People have shown the dissent. कितने shifts थे? People have shown the dissent. कितने districts बने गए? People have shown the dissent toward party. People have shown dissent towards your party. People have shown dissent towards your party. They have made sure that your party doesn't come as an elected representative. That we can see on the number. That is the number there. That is what we're seeing there. That is what is happening there. It is on the screen. Screen shows it very rightly. Screen shows it. The number shows it. The people showed it. Election showed it. Election showed it. Election showed it very well. You can see the numbers. There are no numbers on the ground. आप थोड़ा सा सलमान साहब जी, ये इल्जामात और जवाबी इल्जामात जो हैं इनको थोड़ा सा रोकते हैं। तो प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपको लगता है ये जो एक सवाल खाली इनको पूछिए, इस चीज पे क्यों बात नहीं की जा रही है कि कांग्रेस और एनसी का जब यहां आ रहे हैं तो इनकी आइडियोलॉजी जब मिल नहीं रही है, वो 370 के सपोर्ट पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो उन्हीं के सपोर्ट से बना रहे हैं ना, वो 370 के साथ है, उनकी 6 सीटें हैं, वो 370 के साथ है और यहां पे ये 370 के खिलाफ है। तो इस पे बात करिए और मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब बात करें इस पे। मैं जरूर इस पर बात करूंगा। प्लीज करिए। जब 2014 में जो अलायंस बनी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने किस बेसिस पर यह कहा कि हम 370 वगैरह जितने भी कंसर्न्स है पीडीपी के और जो भी क्रॉस एलओसी मामलात है, हम उनको मान लेते हैं कि दे विल बी पार्ट ऑफ द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और वो रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन पीडीपी एंड भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन इज कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है जब ये पावर में आ जाती है और जब अलायंसेस होती है, कोएलिशन गवर्नमेंट्स होती है, या जब कोई डायर स्टेट, डिफिकल्ट स्टेट में कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो आपको नेगोशिएट करने पड़ते हैं, तब रिटर्न वर्ड जो है पावर के लिए कुछ भी अपनी आइडियोलॉजी नेगोशिएट करे, आप लोगों को धोखा दे, आप लोगों को झूठ बोले, आप लोगों के साथ उनके सेंटिमेंट्स को खेले, उनके सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट करे, उनको मैनिपुलेट करके वोट दिलवाए कि हम 370 पे हम वोट करना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, बेस पूरी पॉलिटिक्स उस पर करे और पावर नंबर्स के लिए जस्ट फॉर सम नंबर्स, फॉर सम एडिशन आप बोलिए कि नहीं जी हम आपको तब सपोर्ट करें क्योंकि हमें पावर में आना है, सत्ता में आना है, कुर्सी पकड़नी है, और तब हमारी पीपल सलमान साहब तो आपसे सवाल है, तो क्या मानते हैं कि 370 की बहाली जो है मुमकिन नहीं है, और स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट की बहाली मुमकिन है? 370 जो है जी, लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन इट कि 370 जो है हाउ इट वाज एम्पावरिंग द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इसमें क्या क्या इश्यूज थे बताइए। अगर वो इश्यूज लैंड रिलेटेड इश्यूज थे, वन issues related to jobs, employment, issues related to, for example, to environment, to heritage, to etc. etc. Now, let us have a sort of a mapping of the whole Indian state, all the 30 states and union territories, कि कहाँ कहाँ इंडियन स्टेट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम ये राइट सेफगार्ड किए हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जो है ये भी एक डिफिकल्टी रीजन है, और उस रीजन में मेघालय, आसाम, नागालैंड, ऑल 7 स्टेट्स जो वहाँ पर है, उनके लिए भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस है
कितने लोगों को पता होगा कि गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां बाहर वाला कोई लैंड नहीं खरीद सकता है? हाउ मेनी पीपल ऑल्सो अप्रिशिएट इट कि हिमाचल के एरियाज में देयर आर एरियाज वेयर नो आउटसाइडर कैन बाय लैंड। और ये ऐसा इशू है जो जम्मू में भी सेंसिटिव है और वैली में भी, बल्कि वैली में कम सेंसिटिविटी है और जम्मू में ज्यादा थी। हाँ, रहा सवाल इन्वेस्टमेंट का, जो सलमान साहब ने पहले कहा कि भाई डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ये एक पर्सपेक्टिव है। नहीं, just 1 minute, just please let me finish it. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम में जब वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए 75 के बाद, एक बिल लाई गई लैंड ग्रांट्स बिल जम्मू कश्मीर असेंबली में। वो लैंड ग्रांट्स बिल काफी कंट्रोवर्शियल बिल थी और अब्दुल गनी लोन उस वक्त जो थे और मुजफ्फर हुसैन बैग, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया उस बिल के खिलाफ। बिल क्या थी कि शेख साहब ने कहा कि अगर कोई मेनलैंड इंडिया का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम 90 ईयर्स पर यहां लैंड देने के लिए तैयार है। लेकिन कोई इन्वेस्टर आया नहीं। वो इन्वेस्टर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो माहौल नहीं बना पाए इन्वेस्टर के लिए, वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाए इन्वेस्टर्स के लिए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑपरेट करने के लिए, ईज ऑफ बिजनेस के लिए सिक्योरिटी चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए जो आप एनसी नहीं दे पाई, पीडीपी नहीं दे पाई, कांग्रेस नहीं दे पाई। अब तीनों हजरात को मैं रुकना चाहूंगा, हमें एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे, तो एक वक्फे के लिए रुकते हैं। देखा कि आजकल जो है यूथ में काफी एंथुसियाज्म है वोटिंग के हवाले से, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की जीत है और जमहूरियत पे लोगों का एतमाद है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जमहूरियत की जीत है और अब ये जमहूरियत ग्राउंड लेवल तक जा रही है, एक जमहूरी फिजा कायम हो रही है। मे कर पन वोट कास्ट, मे चुन पन कैंडिडेट, लोकल मुद्दों खतर चुन मे कैंडिडेट। अम कन वोट त्रा कि सैनिस इलाकस बन तरक्की। वोट जो अभी हम डाल रहे हैं वो डेवलपमेंट और अपना नुमाइंदा चुनने के लिए, हमें यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए और बाकी जो भी यहाँ पे यूथ, बेरोजगार यूथ है, तो उनके लिए कुछ रोजगार फराहम होना चाहिए, इसलिए हमने वोट कास्ट किया। है कि हमारे यहाँ हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम यहाँ की सियासत को चाहते हैं आगे बढ़ाना और एक अच्छे नुमाइंदे को लाना चाहते हैं असेंबली में जो यहाँ के लोगों की बात करे। उनसे पूछना चाहेंगे आप किस मकसद से यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं? जी, मकसद ही हमारा है कि डेमोक्रेसी का पार्ट है, वोट डालना ज़रूरी है, अपना नुमाइंदा चुना है, मसाइल होते हैं उनको हल करना ज़रूरी है।
नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम अवाम का फ़ैसला आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम हैं। ऑलमोस्ट काउंटिंग जो है ना वो इख्तिताम को पहुंची। अभी एक सीट प्रोबेबली है जिसमें अभी रिजल्ट जो आना बाकी हैं। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक आपको फिर से एक बार वेलकम करता हूं। आज पूरा दिन आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। डीडी कशीर की ये खसूसी नशिस्त असम्बली इलेक्शन 2024 के नताइज के हवाले से है। इस आखिरी सेशन में जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब हमारे साथ हैं और रऊफ रसूल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और तजिया निगार। सर, पूरे दिन के अखीर में पहुंचे हैं हम जी। हम दिन के अखीर में पहुंचे हैं और फाइनल जो काउंटिंग की जो अभी जो सीट्स की शरह है वो हमारे स्क्रीन्स पे है। 42 सीट्स जो हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल की हुई हैं और एनसी जिनके साथ ये कांग्रेस जिनके साथ इनका प्रीपोल अलायंस था उन्होंने 6 सीट्स हासिल की हैं। तो 48 सीट जो है ना जो वेल बियॉन्ड द नंबर है। और एक सीट जो CPIM तारिक आमी साहब है वो भी इस अरेंजमेंट के तहत इन्हीं के साथ है। 49 सीट्स हैं। इस पे आप अगर आप इंडिपेंडेंट या अदर्स को ले जाना चाहें तो ये वेल बियॉन्ड 50 जो वेल बियॉन्ड 46 जो नंबर है तो बड़ा इजीली और फेयरली इन्होंने जो है ये मकाम इसको लाइन क्रॉस कर लिया है। कल तक जो कन्वर्सेशंस 5 नॉमिनेटेड सीट्स के बारे में था, कल तक जो डिस्कशंस BJP और PDP का किंग मेकर के डिस्कशंस थे, प्रोबेबली द राइटिंग इज़ वेरी मच ऑन द वॉल राइट नाउ। तो प्रोफेसर साहब आपसे शुरुआत करूँगा। फाइनली रिजल्ट्स हो गए हैं हमारे सामने, आखिर नताइज हमारे सामने हैं। तो पूरा दिन हम इस पे बहस करते रहे हैं कि कैसे मैंडेट है और क्या रीजंस रहे हैं। अब आई थिंक इलेक्शन की जो प्रोसेस है और वोटिंग की जो प्रोसेस है प्रोबेबली दैट इज़ डन और ये एक मार्का जो है वो हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसमें सबकत हासिल कर गई है। अब इससे आगे अब जो है वे फॉरवर्ड अगले आने वाले 2 महीनों में क्या होता दिखाई दे रहा है? जी डेफिनेटली जो आज रिजल्ट्स आ गए तो उसमें एग्जिट पोल्स का जो ऑलरेडी था कुछ असेसमेंट और पब्लिक असेसमेंट जो भी थी, लेकिन दोनों को क्रॉस करके नेशनल कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलरली और फिर कांग्रेस को भी अगर हम उसके साथ मिलाए और भी इंडिपेंडेंट्स वगैरह वगैरह तो इट हैज़ एक्चुअली क्रॉस्ड द व्हाट यू कॉल एज कि जो रिक्वायर्ड नंबर्स है फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। बिल्कुल। लिहाजा नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ गवर्नमेंट फॉर्मेशन। बिल्कुल। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑब्लिगेशन है ऑन द पार्ट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इनवाइट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। तो लीडर कौन होगा वो लेजिस्लेचर पार्टी को वो उनको करना है। दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, प्रोसीजरल इश्यूज कि वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, एट्सट्रा एट्सट्रा। लेकिन बेसिक हर्डल जो था, जो हमें लगा इस इलेक्शन में कि पता नहीं वर्डिक्ट कैसे आएगा, लेकिन ज़रूर एक बात है कि व्हाट एक्चुअली इज कमिंग, हाउ डू यू रीड दिस मैंडेट। जी सुबह से हम किसी न किसी तरीके से वही कर रहे हैं कि व्हाट्स द स्टेटमेंट, द लार्जर स्टेटमेंट दैट दिस इलेक्टोरल वर्डिक्ट हैज मेड, व्हाट हैज कम आउट ऑफ इट। कुछ डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो पिकअप करनी पड़ेगी एज फार एज 2024 इलेक्शंस टू दी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली आर कंसर्न। वन, एक तो ये है कि बहुत देर के बाद एक पार्टी, रीजनल पार्टी, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ जो आप कहेंगे सीट्स, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल बैकिंग वो हुकूमत बनाएगी। यानी कि उनको ये ज़रूरत नहीं है कि उनको दूसरी पार्टी जिस पर वो डिपेंडेंट है, बल्कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो उस सेंस में उनका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है नहीं। बिल्कुल। और ये भी है कि कांग्रेस से जितनी एक्सपेक्टेशन शायद उनके वर्कर्स को थी या कोएलिशन पार्टनर को थी, उस वो एक्सपेक्टेशन वो फुलफिल नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन ये तो एक बात है कि बहुत देर के बाद एक सिंगल पार्टी ठीक ठाक मेजॉरिटी ले गई। लेकिन दूसरा मसला ये है कि जम्मू जो है एज ए रीजन, वहाँ से उस पार्टी को एक फेयरली लार्ज मैंडेट मिला है जो दिल्ली में हुकूमत कर रही है, लेकिन जो प्रीवियस हिस्ट्री हमें यही बताती है एक डिफिकल्ट कोएलिशन पार्टनर है। बिल्कुल। डिफिकल्टी इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल पोजीशन जो है बीजेपी की वो जम्मू कश्मीर के मामलात के लेकर वो काफ़ी डिफरेंट है। जी। तो जिसकी वजह से
एक और इशू ये भी है कि इस स्टेट में, जम्मू कश्मीर रियासत में, पहले तो जब लद्दाख भी इसका हिस्सा था तो डाइल्यूट हो जाता था ये रीजनल एक एनिमोसिटी जो इलेक्टोरल फॉरम में अब सामने आती है जी। तो लेकिन अब ये 2014 में भी और रिपीटली 2024 में भी ये वर्डिक्ट इस लाइन पर आ रहा है कि एक जगह से लोग उस पार्टी को अपना मैंडेट देते हैं जो उन इश्यूज पर हाइपर एक्टिविटी है जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज के लिए बड़े डेंजरस है। एग्जैक्टली। तो लिहाजा इसमें मुझे लगता है कि देयर इज नीड, मैं ऑलरेडी ये कह चुका हूँ बहुत बार सिविल सोसाइटी मीटिंग्स में, कि जम्मू कश्मीर का इलेक्टोरल वर्डिक्ट इसको शायद एक लार्जर फ्रेमवर्क में देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इस लार्जर फ्रेमवर्क में बीजेपी पर भी काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप कि वो इस वर्डिक्ट को ठीक ठाक तरीके से समझे और इसमें कोई ऐसा ये स्ट्रिक्टली पार्टी एंगल से पार्टी इंटरेस्ट जो है, पार्टी इंटरेस्ट को वो प्राइमेसी ना दे। बिल्कुल। किसी को पार्टी इंटरेस्ट ज़्यादा इसमें लाना नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत में ये भी एक बड़ा मसला है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी पॉलिटिक्स जो है कहीं न कहीं नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के साथ भी कनेक्टेड है। तो उस सेंस में बीजेपी हैज टू बी ट्वाइस कॉशियस कि डील किस तरह से इस वर्डिक्ट को हम रेस्पेक्ट करें। जी बिल्कुल। और फ्री प्ले दे कि कैसे किसको हुकूमत बनानी है, क्या करनी है। बाकी ठीक है, अपोजिशन पार्टीज का हमेशा एक रोल होता है, वो तो रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आई थिंक बिल्कुल आपने लेआउट किया है कि आगे आने वाले 1-2 महीने जो हैं इतना आसान नहीं रहेगा। अभी इस पोजीशन में बैठकर जहां पे अब देख रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स हैं और आने वाला टाइम कैसा है, ये कहना बेजाना होगा कि आई थिंक इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना और इलेक्शन जीतना, आई थिंक ये एक ईजियर स्टेप था कंपेयर जो आगे स्टेप्स आने वाले हैं। रऊफ साहब, एक पॉइंट ये कि कम्युनिकेशन जो दिन भर आई हुई है सोशल मीडिया पे, फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑलरेडी बता दिया है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं पार्टी के हेड होने की वजह से जो हैं सीएम के लिए उस पोजीशन के लिए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि चूँकि उमर अब्दुल्ला साहब 2 सीट से कॉन्टेस्ट कर गए थे और दोनों से जीत गए हैं, तो उनको एक सीट छोड़ना पड़ेगी और उस सीट पे फिर से इलेक्शन होना होगा। वो बडगाम होती है या गांदरबल, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछले 5 साल से और प्रोबेबली ख़ास तौर पर इस इलेक्शन में जब हमने देखा, उमर अब्दुल्ला साहब उतने क्या मैं उसको बोलूँ, पूरी मोटिवेशन और थोड़े से रिलक्टेंट उनकी पार्टिसिपेशन लगी है। मैं एक डायरेक्ट सवाल आपसे रऊफ साहब पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब एक रिलक्टेंट सीएम होंगे इस आने वाले टाइम में, कंसिडरिंग की जो सिचुएशन भी जैसी है? नहीं, आई डोंट थिंक कि उमर अब्दुल्ला हो या कोई और हो, एज फार एज these results are concerned, so he will also have to evolve accordingly. जो मैंडेट मिला है, इतना बड़ा मैंडेट जो शायद खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ responsibilities on national conference as a party and Umar Abdullah in particular, because he will be heading the government. Exactly. And in fact that is it was a foregone conclusion कि in case of NC being there anywhere in the reckoning, it would be Umar Abdullah who will be leading as chief minister. And अब ये जो है कल तक एक स्पेकुलेशन के पैराडाइम में थी, आज ये एक रियलिटी बनकर कि इट इज स्टेयरिंग एवरीबडी इन द फेस। तो उमर अब्दुल्ला विल हैव टू आई मीन weigh his options very carefully, because ये जो मैंडेट मिला है ये एक अच्छे खासे मैं कहता हूँ बहुत बड़े promises के बैक पे मिला है, and how to realize those promises and translate those into reality, which is not going to be very easy for NC, given that BJP also has done formidably well, because पिछला जो उनको स्कोर था वो 25 के आसपास था, और अब जो है वो इस वक्त 29 पे हैं। maybe there will be further improvement, और वो जो nominated seats जब वो आ जाती हैं तो that will add to the BJP's tally. तो एक अच्छी खासी अपोजिशन भी होगी, तो उस सारे में
it is not going to be very easy for Umarullah to steer the state towards realizing the promises जिनकी बैक पर के उनकी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला। राव साहब, इसके साथ एक जुड़ता सवाल ये जो 42M आए दिन पूरा दिन इसका तज्जिया कर रहे थे और हमने कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव से भी ये सुना कि ये जो 42 नंबर्स हम इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट देखते हैं तो एंटायरली नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये प्रीपोल अलायंस की भी वजह से बहुत सारी सीट जो हैं जहाँ पे उन्होंने कंटेस्ट ही ऐसे किया है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस थे कि दो में से कोई एक ही फरीक वहां से आ जाए, तो उनका ये कहना है कि 42 माइट अपीयर अगेंस्ट द नेम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट सच्चाई ये है कि उसमें कांग्रेस का भी, तो कांग्रेस का इसमें क्या रोल रहेगा और कितना इजी या डिफिकल्ट रहेगा एनसी के लिए कांग्रेस के साथ ये स्टेयर करना? अगर हम प्योरली ऑन अरिथमेटिकल बेसिस इन फिगर्स की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एनसी के नाम के अगेंस्ट 42 सीट्स हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 गई हैं। बट ऑब्वियसली जैसा कि आपने कहा कि ये 42 एनसी के खाते में नहीं गई होती अगर उनका एक प्री पोल अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं हुआ होता, यानी ये जो 42 है इसमें एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है जो है वो कांग्रेस का भी है, तो दैट वे कांग्रेस की एक अच्छी खासी लिवरेज न सिर्फ उस ज़मन में रहेगी बल्कि ये भी तो है कि जो एनसी ने प्रॉमिसेस किए हैं उनको अगर उनके पूरी तरह से उनको फुलफिल भी ना किया जा सके, लेकिन अगर उनके करीब से भी गुजरना है तब भी कांग्रेस का सपोर्ट उनको चाहिए होगा, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कांग्रेस इज ए फॉर्मिडेबल फोर्स इन द लोकसभा एज वेल, सो दैट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, स्पेशली जब ये सारे मसले कंट्री की पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आने वाले हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ है जो अभी इन नताइज से हमें सामने आ रही है कि अब जो सरकार बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, उनको जम्मू की रिप्रेजेंटेशन को लेकर बड़ा हसास तरीके से आगे बढ़ना है, तो आपको क्या लगता है कि एक तो ये बीजेपी बीइंग अपोजिशन में यहाँ बैठकर, और जम्मू में हम देखते हैं कि जितना दिल्ली की पॉलिटिक्स का असर जम्मू पे होता है उतना कश्मीर पे नहीं होता है, तो प्रोबेबली जो असर वहाँ पे है तो उसको स्टेयर करना कितना इजी या डिफिकल्ट रहेगा, कंसिडरिंग मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी कश्मीर और जम्मू की वो कॉमन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजली की बिलों का हिसाब है, लैंड वो मसला है, बट ओवरऑल जैसे कि रऊफ साहब ने भी कहा और आपने भी कहा कि जो वादे एनसी ने किए हैं वो बड़े कश्मीर सेंट्रिक हैं जिन पे प्रोबेबली वो ज़्यादा काम, तो इस सारे तनाजुर में वो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन और जम्मू को लेकर कैसे चलेंगे? नहीं, पहले मैं एक कहूँगा कि जो भी वादे आप कहेंगे या मैनिफेस्टो में जितनी भी चीज़ें उन्होंने रखी है वो कश्मीर सेंट्रिक नहीं है जी। लगता है कि फॉर सम रीजंस कि शायद वो कश्मीर सेंट्रिक है लेकिन कश्मीर सेंट्रिक नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे स्टेटहुड जी, स्टेटहुड की डिमांड जो है ये इको करती है कश्मीर में भी उतना जितना जम्मू में करती है, और एज सच प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, होम मिनिस्टर ने बल्कि 3-4 बार प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी आए, वैली में भी रिपीटेडली उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के बाद पहले कहा कि डिलिमिटेशन होगा, ये होगा, रिऑर्गेनाइजेशन होगा, सो मेनी थिंग्स। नाउ दिस इज द ओनली थिंग लेफ्ट इफ यू गो बाय दैट। एक सीक्वेंस में उन्होंने कहा कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, अल्टीमेटली इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद स्टेटहुड होगा। सो इन दैट सेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट एवर्स टू इट, एक बात। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बात कोई स्टेटमेंट देगा तो उसका अपना एक वजन है, हाँ, यू कैन नॉट टेक इट। दूसरा ये भी है, और शायद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत पहले कहा था कि हम जो नई असेंबली बनेगी तो उसमें भी एक रेजोल्यूशन लाएंगे, बिल्कुल, तो अगर वो रेजोल्यूशन आ गया तो फिर वहाँ भी पता चलेगा कि बीजेपी जो है, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स वेदर दे विल बी ऑन बोर्ड और नॉट, या रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, मे बी इट कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड, देयर आर वेज टू एक्चुअली नेगोशिएट सर्टेन थिंग्स, बिल्कुल। एक बात तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे इश्यूज जो है, देखिए आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 371 है, अदर आर्टिकल्स जो है, या अभी जो 6th शेड्यूल के लिए लद्दाख के लोग, लद्दाख कारगिल के लोग फाइट कर रहे हैं, जी बिल्कुल, these are essentially safeguards within the Constitution of India. बदकिस्मती से बहुत सारे इश्यूज पॉलिटिकल पार्टीज ने इतने कंट्रोवर्शियल बना दिए, पॉलिटिसाइज कर दिए, और इतने पॉलिटिसाइज बन गए कि वो डिवाइसिव इश्यूज बन गए, बिल्कुल।
मसला अगर आप लैंड प्रोटेक्शन का है, अगर जॉब्स का मसला है, अगर इकोलॉजी का मसला है, तो बाकी स्टेट्स में भी हो रहा है, जम्मू में भी ये इशू है, यहाँ भी इशू है। बिल्कुल। मैं कल देख रहा था किसी जम्मू में किसी 2-3 आर्टिकल्स उनके एक्सेलशियर में, डेली एक्सेलशियर में कल दिन में जो मैंने पढ़े, तो उसमें वो कहते कि साहब पार्किंग स्लॉट जो जम्मू में है उनका कॉन्ट्रैक्ट बाहर वालों को दिया है, लिकर जो है यहाँ पे भी लिकर की लाइसेंस वो बाहर वालों को दी है। दरबार मुंह से हमें ठीक है 200 करोड़ पैसा वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को बचत हुआ, लेकिन 500 करोड़ रुपया बिजनेस कम्युनिटी को लॉस हो गया। एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन है इसके बहुत सारे इश्यूज जो वन वे आर द अदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कहीं न कहीं वो 370 या 35A के साथ पॉलिटिसाइज करके हो गए हैं कि वो मच डिपेंड्स अपॉन कि आप इसको कैसे फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को। बिल्कुल। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि ये कश्मीर सेंट्रिक इशू है, ये जम्मू में भी इक्वली ये रेजोनेट होते हैं और रेलेवेंट है। राउत साहब आप ऐड करना चाहते प्लीज। इनफैक्ट इफ आई कुड टेक ऑफ फ्रॉम वेयर प्रोफेसर साहब लेफ्ट इट, वो ये कि अगर हम देखें कि पिछले 30-35 साल में जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, उसके कोर में, उसके हार्ट में जो इश्यूज थे वो थे रिलेटेड टू एथनो रिलीजियस आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली ऑफ द वैली। तो ये जो नई गवर्नमेंट जो भी बने और जैसे भी बने, दे विल हैव टू एले द फियर्स विद रिगार्ड टू these issues that have been there in the heart of this friction between Srinagar and New Delhi or between Jammu and Kashmir Valley. तो ये सारे fears जो हैं, जो inhibitions हैं पॉपुलर लेवल पे, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एंड NC alone cannot do it and it has to be done in sync with the state government को जब सेंटर का एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा तब जाकर के ये फियर्स जो हैं एले हो सकते हैं। और जब तक ये फियर्स जो हैं, इनहिबिशन जो हैं एले नहीं होती हैं, आई डोंट थिंक दैट देयर इज गोइंग टू बी मच हेडवे इन सिचुएशन हियर। जी राउत साहब, इससे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कश्मीर पे तो हमने बात की, आई थिंक कश्मीर का मैंडेट सामने है और उस मैंडेट के हिसाब से सरकार बन रही है। जम्मू के वोटर की बात करें, जम्मू का वोटर जो है पिछले 10 साल से एक पर्टिकुलर नैरेटिव सुनता आ रहा है, उस नैरेटिव को उसने इंटरनलाइज करके या उस नैरेटिव को समझकर उसने वोट भी आज किया है। ही हैज़ सारे जम्मू ने प्लेन से लेकर वो जो 11 सीटें हैं उन्होंने यूनानिमसली वोट कर दिया है एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो वो जो 10 साल से सुनते आए हैं, फाइनली उन्होंने वो किया है। एंड येट वो अपने आप को एक ऐसी जगह पे देख रहे हैं कि जहां फिर से पावर उसी सेंटर से आ रहा है जहां पे ये बोला गया था कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है। तो इस वक्त जम्मू के वोटर के जहन के अंदर क्या चल रहा होगा? वेल दे विल हैव टू थिंक, मुझे लगता है कि जिस चीज़ को जम्मू के वोटर को जो इंड्यूसमेंट दी गई थी कि अब की बार जो है एक डोगरा हिंदू चीफ मिनिस्टर आपको मिलेगा, तो वैसा तो होता दिख नहीं रहा है। तो एटलीस्ट हम नेशनल कॉन्फ्रेंस आज की डेट में या इस वक्त ये क्लेम कर सकती है कि उनकी जो सीट्स आई हैं वो ना सिर्फ वैली में आई है बल्कि ये जो पीर पंचाल रीच है इसके उस पार भी कुछ सीट्स उसके खाते में आई हैं। देन कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस किया हुआ तो वो जो कांग्रेस की सीट्स हैं वो भी कुछ सीट्स वहाँ से आई हैं। एंड दिस इज़ समथिंग दैट बीजेपी, जिसको जम्मू के प्लेन्स में मैंडेट तो मिला है, दे कैन नॉट मेक ए सिमिलर क्लेम विद रिगार्ड टू वैली। तो उनको तो यहाँ पे कोई सीट नहीं आई है। तो ऑब्वियसली जम्मू का वोटर जो है उसको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा, इसको इन्फर करना होगा। अब उसकी क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकती हैं वो तो वही जानते हैं। एंड मे बी के आने वाले वक्त में हमें पता चले कि हाउ दे इंटरलाइज एंड इन्फ्लुएंस इट। आई डोंट नो। आई थिंक फेयर एनफ, ये एनालिसिस आई थिंक फेयर है कि उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो आगे भी देखेंगे कि सरकार कैसे जा रही है, गवर्नेंस कैसे हो रही है। बट प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ है इस इलेक्शन में कम से कम हमें दिखी, अभी हम एनसी की बात कर रहे हैं या जम्मू में बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जो है ना वो स्लाइड हो गई है अंडर द कारपेट कि बीजेपी कश्मीर में कुछ नहीं कर पाई है।
एक सीट अभी दोपहर तक हम बात कर रहे थे कि शायद गुरेज में किसी पेरिफेरी में या कहीं और पे, एंड वी हैव सीन आज इस वक्त हमारे पास 90 सीटों का है, एंड बीजेपी हैज़ नॉट बीन एबल टू ब्रेक इनटू वैली। और ये तब हो रहा है, जो तज्जिया निगार या जो हम वर्ड ऑन द स्ट्रीट देख रहे हैं, ये तब हो रहा है जब बीजेपी हैज़ डायरेक्टली रूल्ड द ज्योग्राफी फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम। तो उसके बावजूद जो है वो नहीं कर पाई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि बीजेपी इसको कैसे सोच रही होगी, और आने वाले टाइम में बीजेपी को अब क्या ही करना, बिकॉज जैसे रऊफ साहब ने कहा कि जम्मू में वो जो कर सकते थे वो हो गया है, और जम्मू जितना दे सकता था उतना दे दिए है उन्होंने। कश्मीर में वो जितना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देख सकते थे, डिलिमिटेशन हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई है, उसके बावजूद नताइज ऐसे हैं। तो क्या ये एक लार्जर कंट्री में ये मैसेज भेज रही है कि ये जितनी भी परमिटेशन कॉम्बिनेशंस आपने की है, ये जो वोट है ये प्रो एनसी आया है या एंटी बीजेपी आया है? नहीं, अगर हम वो, मैं एक्चुअली आई हैव फॉरगॉटन कि जब हम ये डायसेक्ट कर रहे थे कि मैसेजेस क्या है इस इलेक्टोरल वर्डिक्ट की, एक पॉइंट जो हमें हाईलाइट करना था और हम भूल गए उस वक्त या समहाउ उसको डिस्कशन में नहीं लाए, वो ये है कि इट इज़ ए वोट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ द डिग्निटी ऑफ द पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। राइट, ये बीजेपी को भी ये ठीक ठाक तरीके से ये समझने की ज़रूरत है, पार्टी को भी, और स्टेट के जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी। Obviously they are not in a one way, हम ये नहीं कह सकते कि they are not looking at it, लेकिन ये एक बड़ी पावरफुल मैसेज है इस इलेक्शन की कि जो वर्डिक्ट आया कि उसमें एक मैसेज ये भी है। रहा सवाल जहाँ तक ये कि उन्होंने यहाँ खाता क्यों नहीं खोला, यहाँ क्यों उन्होंने कोई सीट नहीं ले पाए, तो मुझे लगता है कि वो भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट मसला नहीं है समझने के लिए कि इट वाज ऑलवेज डिफ़िकल्ट, वन। सेकंड ये कि ऑलरेडी बीजेपी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में शायद उसको वन वे आर द अदर क्लियर किया था कि जब उन्होंने यहाँ से कैंडिडेट्स फील्ड ही नहीं किए। एग्जैक्टली। और फिर उन्होंने कहा कि ये एक स्ट्रैटेजी है हमारी। अब की बार उन्होंने कहा कि हम कहीं इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट करेंगे, कहीं लाइक माइंडेड पार्टीज को सपोर्ट करेंगे, कहीं कुछ और करेंगे, लेकिन डायरेक्टली वो फेस नहीं करेंगे। लिहाजा खुद भी उन्होंने तकरीबन ये क्लियर किया था कि एटलीस्ट कश्मीर वैली में हमारे लिए जो है स्पेस नहीं होगी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां जहां बीजेपी ने कॉन्टेस्ट किया, फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां हमें यहां पता चला गुरेज का मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज वेरी लो। एग्जैक्टली। और बीजेपी कैंडिडेट हैज बीन एबल टू गेट 7,000 वोट्स। बिल्कुल। इट इज समथिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू इग्नोर। बिल्कुल। और वट एवर कि गुरेज की टोपोग्राफी क्या है, गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोफाइल क्या है, गुरेज के सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक इश्यूज क्या है, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। बट इन स्पाइट ऑफ दैट बीजेपी के जो स्पिन डॉक्टर्स होंगे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, वो अब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डेफिनेटली दे विल गो इनटू डिटेल्स कि क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई हैरानगी की नहीं है कि बीजेपी का एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम वैली एट दिस टाइम, मैं समझता हूं कि उनकी गलत एक्सपेक्टेशन थी, एक बात। दूसरा ये कि खुद उन्होंने इसको वन वे आर द अदर मान लिया था जब उन्होंने कोई कैंडिडेट ही फील्ड नहीं किया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो उसका मतलब ही था कि देयर इज नो स्पेस फॉर देम। एग्जैक्टली। रऊफ साहब, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अब नताइज तो आ गए हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब डे टू डे जो गवर्नेंस है वो उसके भी अपने मसाइल होंगे। दो चीज़ें मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक तो हमने ऑलरेडी दिल्ली में ये इशू होता देखा है कि जब एक कॉन्टीन्यूअस और कांस्टेंट फ्रिक्शन रहता है असेंबली और एलजी के ऑफिस के बीच में, और वो हमने एक बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल पे जाता हुआ देखा है दिल्ली में। और अभी तक जो हैं आज के नताइज के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग ये भी पेशेंगोई कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगले जो 2-3 महीने हैं या प्रोबेबली 1 साल भी होने वाला है, वो भी बड़ा फ्रिक्शन वाला रहेगा गवर्नमेंट के लिए और एलजी के ऑफिस के लिए। तो आप डे टू डे जो हमारी गवर्नेंस है जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसा आप दोनों ने किया है कि एम्प्लॉयमेंट है, अब हमारे लैंड के मसाइल हैं, जो बिजली का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, ये आई मीन दे आर लेस ऑफ
क्या कहते हैं पॉलिटिकल थिंग्स, दे आर मोर ऑफ गवर्नेंस थिंग। तो उस फ्रंट पे आप कैसे देखते हैं इस वर्डिक्ट को, कि इस वर्डिक्ट की वजह से क्या आसानी होने वाली है या वो फ्रिक्शन ज़्यादा मुश्किल आगे पेश करेगा? वन थिंग दैट इज़ वेरी सर्टन इज़ दैट ये जो रिलेशनशिप होगी बिटवीन द most probably the NC Congress government and the LG's office, that friction is going to be there. Just assured about it, because ये चीज़ें हम वहाँ पे भी देख रहे हैं. We are not talking only about the say the union territory, because union territory की वजह से जो LG का ऑफिस, और पर्टिकुलरली जो रिसेंटली जो नई नई अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, नई नई ऑर्डर्स निकले हैं, उस हिसाब से तो LG के ऑफिस को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, एंड ऑब्वियसली एट द कॉस्ट ऑफ वट एवर इज़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट. लेकिन ये चीज़ें हम वहाँ पे भी देख रहे हैं जहाँ पे ये होना तो नहीं चाहिए था. फॉर इंस्टेंस देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन Raj Bhavan and the elected government in West Bengal. We are seeing it happen even in Tamil Nadu. We are seeing it these constant skirmishes between the governor's office and the elected government in Kerala. Exactly. ये तो बहुत सारी स्टेट्स में हो रहा है. हालांकि वो जो है वो फुल फ्लेज्ड स्टेट्स हैं और बहुत ही पावरफुल स्टेट्स हैं. Exactly. In terms of the strength of their population and the strength of their legislatures. तो वो बहुत पावरफुल स्टेट्स में अगर ये चीज़ देखने को मिल रही है तो दिल्ली या पुडुचेरी या कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की तो कोई बात ही नहीं है. तो वन थिंग वन कैन रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इज के देयर इज गोइंग टू बी फ्रिक्शन, देयर इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट नोक जोक between the elected government and the LG's office in Jammu and Kashmir as well. And जब तक वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, I don't think that even the simple matters of governance are going to be easy for any government to execute. प्रोफेसर साहब आप इस पे ऐड करना. जी, मैं इसमें दो इश्यूज लाना चाहता हूँ. एक ये कि अगर आप दिल्ली के एक्सपीरियंस लेंगे, दिल्ली की हम इसलिए लेते हैं कि 2 डिफरेंट पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी. जी. तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में डिसीजन भी दिया कि पावर्स लाई विद द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, एग्जैक्टली, नॉट विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर. लेकिन वो वर्डिक्ट, वो डिसीजन देने के बावजूद भी LGO वहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, he is day in and day out. आप देखते हैं, आप इसमें obviously everything is हमारे साथ. And in that case I would like to कथा कलामी माफ, हमारे साथ फारूक शाह साहब हैं जो जुड़े हुए हैं NC नेशनल कॉन्फ्रेंस के. हमारे टीवी स्क्रीन पे हमारी टीम अगर फारूक साहब तक जाए. फारूक साहब, आपको हमारा ऑडियो मिल रहा है? यस कम ही मिल रहा है, लेकिन फिर जी. फारूक साहब, एक बहुत बड़ी जीत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आज. 42 सीट्स, एक ऐसा नंबर जो प्रोबेबली कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने इंटरनल डिस्कशंस में भी शायद बहुत रिमोट था. कैसे देखते हैं आप इस मैंडेट और इस वर्डिक्ट को? जी जी फारूक साहब, आप मोबाइल से थोड़ा पीछे रखें तो, क्योंकि आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है. फारूक साहब, आवाज आ रही है आप तक? आई थिंक हमारा कनेक्शन उनके साथ लूज हो गया है. आई थिंक हमारी टीम उनके साथ दोबारा जो है राब्ता कायम करने की कोशिश करेगी. हाँ, प्रोफेसर साहब आप बात करें. एक इशू जो मैंने कहा, दूसरा इशू जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, और अभी इस रियासत का एक एक्स गवर्नर, उन्होंने डायरेक्टली जम्मू कश्मीर की बात नहीं की एक डिस्कशन में, बल्कि बाय एंड लार्ज कि सेंटर स्टेट फ्रिक्शन जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, दिल्ली और स्टेट्स के दरमियान, इसके नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट इश्यूज कनेक्टेड है इसके साथ. बिल्कुल. तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के मामले में सेंटर और स्टेट, इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेंटर दिल्ली के दरमियान रिकन्सिलेशन और कोऑर्डिनेशन नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जी बिल्कुल. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि दिल्ली पर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है. इंडियन स्टेट जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है, उन पर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है
कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर बनेगी जी, उस गवर्नमेंट को whatever support is needed, that support must be extended to it. Exactly. And we hope that both governments के यहाँ कश्मीर में भी और दिल्ली में भी जो है मैच्योरली उसको करेंगे, एंड आई थिंक वो गवर्नेंस में जो है ना इजी हो जाएगा. बट इन दैट केस मलिक साहब, ये जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, दिस इज वेरी गुड सजेशन, बट इट इज प्रमाइज्ड on the thing that the parties will have to leave aside their partisan interest and एक principled stance लेकर के, एक moral stance लेकर के एक magnanimity दिखानी होगी. But unfortunately we don't have very good examples that would encourage us in this regard. Exactly. I think I was going to come to, मैं उसी पॉइंट की तरफ आना चाहता था कि वैसे ना हमारे पास मॉडल्स हैं और जो हमारी रिसेंट हिस्ट्री जो हमें बताती है कुछ ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है. बट आई थिंक द कैवियर जो प्रोफेसर साहब ने रखा है कि दिस बीइंग स्टेट जिसका एक अपनी एक ज़रा खसूसी सिक्योरिटी को लेकर डायनेमिक्स हैं, तो प्रोबेबली सेंटर ही उसमें शायद पेशकदमी और पेशरफ दिखाए कि उसको बेटर करने की कोशिश. बट आई थिंक रऊफ साहब आपका जो भी पॉइंट है ना बिल्कुल वैलिड है कि रिसेंट पास में या हमारी एक्सपीरियंस जो है वो ऐसी कुछ ठीक रही नहीं है. बट रऊफ साहब मैं एक्चुअली एक और पॉइंट की जानिब आपकी तवज्जो चाह रहा था और आपसे अंडरस्टैंडिंग चाह रहा था उसकी कि ये तो चीज़ें हो गई कि इलेक्शन कैसा जाएगा और ये मोर ऑफ पॉलिटिकल लैंडस्केपिंग के तनाजुर में हम बात कर रहे थे. अब ज़रा ऑपरेशंस की बात करें, काम की बात करें. यू एज अ सिटीजन ऑफ दिस वैली, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो आने वाली इस वक्त गवर्नमेंट है 10 साल की वेट के बाद, जिसको आपने कहा है कि खुद ये बड़ा एक क्रिटिकल इलेक्शन था, बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन था, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं द टॉप 5 थिंग्स जो गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करने चाहिए व्हेन दे स्टार्ट दिस गवर्नमेंट? वेल, हम नॉर्मली हम कहते हैं कि किसी भी जब हम पॉलिटिकल पोस्टिंग कर लेते हैं तो उस पॉलिटिकल पोस्टिंग को तीन एंगल से उसकी तरफ देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है. आपको आपकी क्या नीड्स है, आपकी क्या पोजीशन है, आपके क्या इंटरेस्ट्स हैं. बिल्कुल. नीड्स वी ऑल नो आर नॉन नेगोशिएबल. तो नीड्स पे तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता है. तो लोगों की जेन्युइन नीड्स है विच नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ, विच नीडेड टू बी प्रायोरिटाइज्ड. अब नीड्स जो है, कुछ नीड्स की बात तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी हुई है. अब एक जो जैसे जॉब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट alone is going to pose a very serious security risk if it is not addressed. और इसके लिए कोई एक रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है. देयर आर टन्स ऑफ लिटरेचर अवेलेबल ऑन दिस थिंग कि किस तरह से कि व्हेन पीपल्स इकोनॉमिक नीड्स आर जियोपर्टाइज्ड, व्हेन दे आर नॉट टेकन केयर ऑफ, हाउ इट फ्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट. और आप एक ऐसे रीजन की बात कर रहे हो which has already been through worst phase of conflict. और यहाँ के जो irritants हैं, most of them are still there. They have not been addressed as of now. तो उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है. and they are directly related with the people's needs. और needs में बहुत सारे आइडेंटिटी इश्यूज आते हैं, नीड्स में यही जॉब्स वगैरह आते हैं, नीड्स में सेफ गार्ड्स विद रिगार्ड टू लैंड फॉर इंस्टेंस आता है, बिकॉज लैंड इटसेल्फ इज डायरेक्टली पार्ट ऑफ पीपल्स आइडेंटिटी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आई डोंट थिंक कि किसी भी तौर से नज़रअंदाज किया जा सकता है. वेरी वेरी वेल पुट रूप साहब. प्रोफेसर साहब, यही सवाल आपसे एज अ सिटीजन, आप भी देख रहे हैं गवर्नमेंट आने वाली है, बड़ी खुशियां हैं कि 10 साल की वेट के बाद गवर्नमेंट आने वाली है. व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? अब क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करना चाहिए? अब एक थ्योरी है सोशियोलॉजिस्ट के पास जो हम लोग भी पढ़ते हैं और स्टूडेंट सब सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशंस. जी प्रोफेसर साहब, कता कला दाऊद साहब हमारे साथ बारामूला से हैं. दाऊद साहब. जी 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 आवाज हमारी पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर. जी आपके हमरा इस वक्त कौन है? जावेद. मेरे साथ है जावेद अहमद डार, रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का. जी जावेद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं आपकी इस विन पे. और एक तो अपने आप कॉन्स्टिट्यूंसी का भी बताएं कि अक्सरियत से आपने जीता है, लेकिन ओवरऑल जो ये मैंडेट है, वर्डिक्ट है, आप इसको कैसे देख रहे हैं?
जावेद साहब, ये आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि पहले आपको मुबारक है, और कैसे आप इस चीज को देखते हैं? जीत होती है, जीत होती है, और रफियाबाद के लोगों ने एतमाद हम पे रखा है, और बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं अभी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान मैं उन जिम्मेवारियों पे खड़ा होता हूँ। जावेद साहब ये भी बता दें, कल तक जो है ना एनसी के इंटरनल क्वार्टर्स में भी शायद इतने नंबर्स की तवक्का नहीं होगी। ये जो 42 नंबर्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिए हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है। इसकी तो एग्जिट पोल में भी तवक्का नहीं थी, और शायद एनसी के अपने इंटरनल क्वार्टर्स में भी इसकी तवक्का नहीं है। तो आप हमें बता सकते हैं कितनी बड़ी जीत है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इस तनाजुर में, खासतौर पर जब ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट था? बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारा खुद का अंदाजा था कि हम लोग 30-35 सीटें हम ले जाएंगे, और हमारी कोशिश थी कि हम मैक्सिमम सीटें ले जाएं, क्योंकि यहाँ पिछले 4-5 साल से अनसर्टेनिटी, पोलिटिकली अनसर्टेनिटी, स्टेबिलिटी नहीं थी, और लोग परेशान थे। लोगों का ये कहना था कि हमारे काम नहीं हो पाते हैं, तो वो चाहते थे वो सरकार यहाँ हो, उनके अपने नुमाइंदे हो। उस तनज़ुर में मैं समझता हूँ कि अब लोगों ने हमें एतमाद दिया है, और इसमें एक मैसिव मैंडेट दिया है, और मुझे यकीन है कि जो मैसिव मैंडेट हमें मिला है, लोगों की उम्मीदें हमसे वाबस्ता है, जब तवक्कात ज्यादा होंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम उन तवक्कात पे खड़े हों। बहुत शुक्रिया, और एक और बार फिर से मुबारक। वहां आई अंडरस्टैंड की सेलिब्रेशन का माहौल इस वक्त होगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, हमारे पास आखिर का 1 मिनट है, आप प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स बता दें। हाँ, मैं यही पता कि एक थ्योरी ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है गवर्नमेंट से जी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मैं एक ही सेक्शन का सोसाइटी ये नहीं कहूँगा कि ओनली वन सेक्शन। यूथ के अपने एक्सपेक्टेशंस है, बाकी लोगों के अपने एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन साथ साथ एक तो ये है कि स्टेटहुड का होना, बल्कि फुल स्टेटहुड, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इट इज़ ए प्रायोरिटी एरिया वन। और सेकंड थिंग ये है कि गवर्नमेंट जो भी बनेगी, क्योंकि नेचुरली ऑब्वियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, तो जो पीस कॉन्स्टिट्यूंसी है और पीस एजेंट्स जो है, उनको मजबूत मुस्तहकम करना पड़ेगा। आई थिंक उसमें उसको उस माहौल को और भी ज्यादा आगे लेना है, सो दैट अदर थिंग्स इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा वो भी कंफर्टेबल हो जाए। एग्जैक्टली। रऊफ साहब, प्रोफेसर गुलवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इनसाइट्स का। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरे दिन जुड़ने के लिए, और हमारी जो टीम है उसका बहुत शुक्रिया कि इसको मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स फील्ड में थे, हमारी जो बैक एंड टीम है, हमारी जो कैमरा क्रू है, उन सबका बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह, जो एक डिफरेंट सेक्शन पे होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।